Good morning, students. Today we are going to study data frame. We are aware that data frame is a pandas data structure. So let's start this topic. Here we are going to learn creation of data frame using the list, creation of data frame using series, and creation of data frame using the dictionaries. These are the various ways by which we can create a data frame. Now, before starting with this data frame, you must be aware of list, dictionary, and the series. We have already seen series in detail in the previous video. Hope you all have revised it and you would be able to create the series. So let's move ahead. Now the characteristics of data frame. Data frame, it is two-dimensional data structure with heterogeneous data. Two-dimensional means it will have certain rows and certain columns. Now heterogeneous data means it may consist of different types of data. It may have strings, it may have integers, it may have some floating values. That's why it is heterogeneous. Now since the data is in tabular form, it will have two indices. One will be the row index, another will be the column index. Now two x's are also used for the data frame. As you can see, for row we are using the axis 0 and for column we are going to use the axis 1. Now it can be thought of as a dict-like container for series objects. It means that we can use the series for the creation of data frame and those series will be stored in the dictionaries. Means the dictionary elements, the values of the dictionaries will be the series. Now this thing will be clear to you when we will study about the creation of the data frames. Now data frame is size mutable. Size mutable means the columns of the data frames, as you can see in this figure, names, marks and grade. There are 3 columns. Now you can add the columns into this or you can delete the columns from it. That's why it is called as size mutable. Now the syntax for creating the data frame. It is just like the series with a slight difference. Now we have to write down pandas dot data frame. Then we have to give certain parameters. The first one is data. The second one is index. This will be used for rows. Next is columns. This will be used for column labels. Now D type will be for the columns. For each column you can say. And this copy will be for when you want to copy the values of one data frame into the another. Now frequently we are going to use data, index and the columns. These 3 parameters we are going to use in our code. So data, as you are aware, data means it can be any Python list, NumPy array, dictionary or any scalar value, and it can also be a data frame. You can create a data frame from the existing data frame also. Now next is the index. Index is used for row labels. By default the index will start from 0. Now here it is, if suppose we have n number of rows, यदि हमारे पास n number of rows है, then the index will start from 0 and it will be up to n minus 1. Next is columns. It is used for column labels. It is same as the index. It is optional value. By default, the column labels will start from 0 and up to n minus 1 because we are using this function np.arrange. Notice the spelling. It is ARANGE. It is one of the
functions of NumPy. Next you have is D type. Now it is the data type of each column. Next है copy. Now this is used when we want to copy the data. By default this will be false, means we are not going to copy any data. Now let's see the different methods by which we can create the data frame. पहला मेथड है we can create the data frame by various lists, by multiple lists. Second method है आपका list of series. If we have different series, multiple series, then we can also create the data frame from the series. Now next is dictionary of series. It means that suppose we have created the series and we have created the dictionary while creating the data frame, then the values of the dictionary can be the series. ये आप जब अभी कोड लिखेंगे तो ये आपको क्लियर हो जाएगा. नेक्स्ट है you can create the data frame from the single dictionary. Next you can also create the data frame by using the nested dictionary. Now we will see one by one with the help of example. तो ये है आपका पहला एग्जाम्पल जिसमें कि हमने मल्टीपल लिस्ट यूज़ की है एंड मल्टीपल लिस्ट यूज़ करके हमने एक डाटा फ्रेम बनाया. सो S1 हियर इज़ अ लिस्ट. S1 आपकी एक लिस्ट है. इस S1 में देखिए हमने डाटा जो स्टोर किया है वो रो वाइज डाटा स्टोर किया है. आशीष 1089. Now you can see here this is my first row, so I have saved the data as per the row. So first row में डाटा है मेरा आशीष 10 and 89. So row wise डाटा हमने सेव किया है एंड रो वाइज हमने लिस्ट बनाई है. For 0th row, for first row and for second row I have created the list. अलग अलग लिस्ट बनाई है. तो देखिए we have the list. This is my list 1, this is my list 2 and this is my list 3. So I have created 3 lists. Now next statement is the statement for the creation of the data frame as per the syntax. हमने एक वेरिएबल लिया है df. आप कोई भी वेरिएबल ले सकते हैं बट इट शुड नॉट बी अ कीवर्ड. कीवर्ड नहीं होना चाहिए. नेक्स्ट हमने लिखा है pd. Now what is pd? pd, it is the variable name that you have used for the imported pandas. Now हमने क्या किया, सबसे पहला स्टेटमेंट जो हमने लिखा था just like the series import pandas as pd. Now pd is my variable name, so हमने यहाँ पर यूज किया है pd dot data frame. ठीक है. इसके बाद हमने लिखा है data equals to s1 s2 s3. Clear? Now this is the optional statement data equals to. You can skip this value data equals to. आप ये skip कर सकते हैं और आप डायरेक्टली भी लिख सकते हैं स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर. ये चीज़ आप skip कर सकते हैं. ठीक है. आप डायरेक्टली लिख सकते हैं स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर s1 s2 s3. सो देखिए मैंने लास्ट स्टेटमेंट लिखा है प्रिंट df. जैसे ही हम प्रिंट df करते हैं तो देखिए आपकी रो वाइज डाटा सेव्ड हो गया है एंड दिस डाटा फ्रेम इज क्रिएटेड. These are the row index. By default the row index starts from 0 because we have not mentioned any of the labels. Labels हमने mention नहीं किए हैं. तो देखिए आपका row index जो start हो रहा है ये start हो रहा है हमारा 0 से. Similarly column index देखिए आप, column labels. So column labels also starts from 0. So यहाँ पर 3 columns हैं तो आपके column index हो जाएंगे 0 1 2. यदि आपको कॉलम इंडेक्स देने हैं तो आप कॉलम इंडेक्स भी मेंशन कर सकते हैं. आपको इंडेक्स वैल्यू स्पेसिफाई करनी है फॉर रोज तो वो भी आप कोड में स्पेसिफाई कर सकते हैं. सो इन दिस एग्जांपल आई हैव created the list row wise and after that I had written the statement for the data frame. Hope it is clear to you all. Let's move ahead. Now this is the another example in which the data frame is created from multiple lists. Now here the lists are created as per
द कॉलम्स। तो देखिए फर्स्ट कॉलम की आपकी ये वैल्यूज़ हैं, फर्स्ट कॉलम की आपकी ये वैल्यू है। तो इस कॉलम के लिए मैंने एक लिस्ट बना दी। सो कॉलम वाइज हम लिस्ट बना रहे हैं। नेक्स्ट कॉलम इज फॉर क्लास। सो नेक्स्ट वैल्यू, नेक्स्ट लिस्ट हम बनाएंगे इस कॉलम के लिए जो कि आपकी S2 है। नाउ अगेन आई एम क्रिएटिंग द लिस्ट फॉर द marks, for the storage of the marks. This is your list. So this list is S3. Now here I am specifying the column headings. ठीक है, हमने 3 लिस्ट बनाई है और तीनों लिस्ट हमने कॉलम वाइज बनाई है। दिस इज योर S1, दिस इज योर S2 एंड दिस इज योर S3। अब मुझे यहाँ पर कॉलम हेडिंग्स भी देने हैं और पहला कॉलम है, हेडिंग है मेरा नेम, देन क्लास, देन मार्क्स। अब इसके लिए सिंपल सा मेथड है, यू हैव टू क्रिएट अ डिक्शनरी। ठीक है, आपको एक डिक्शनरी बनानी है। दिस इज अ डिक्शनरी बिकॉज देखिए यहाँ पर इट स्टार्ट्स विद द ब्रेसेस एंड वी हैव द की वैल्यू पेयरिंग। ठीक है, दिस इज द डिक्शनरी। नाउ इन दिस डिक्शनरी एज यू कैन सी नेम इज अ की, ठीक है, क्लास इज अ की एंड मार्क्स इज अ की। ये तीनों कीज हैं। एंड इन दिस डायग्राम ऑल्सो, इन दिस आउटपुट ऑल्सो यू कैन सी नेम, क्लास and marks. So you have to remember one thing, that the keys of the dictionary, while creating the data frame, the keys of the dictionary becomes the columns in the data frame. The keys of the dictionary becomes the columns in the data frame. And the what values you are going to store here? The values are S1. S1 is for N1. N1 के नीचे कौन सी वैल्यू स्टोर होगी? नेम इज द कॉलम हेडिंग, नेम इज द कॉलम हेडिंग। सो इस कॉलम के नीचे कौन सी वैल्यूज आपकी स्टोर होगी? S1 की। सो S1 की देखिए जो हमने कॉलम बनाया था, ये पूरी की पूरी S1 की वैल्यूज इसके नीचे आ जाएगी। सो नेम आपका हेडिंग रहेगा, कॉलम हेडिंग रहेगा और उसके नीचे पूरी S1 की वैल्यूज आ जाएगी। ऐसे ही क्लास आपका कॉलम हेडिंग रहेगा और उसके नीचे देखिए आपकी वैल्यूज आ जाएगी S2। तो ये सारी S2 की वैल्यूज आ गई जो कि आपने लिस्ट बनाई थी S2 की, ये सारी वैल्यूज S2 की यहाँ स्टोर हो जाएगी। ऐसे ही नेक्स्ट कॉलम आपका बनेगा मार्क्स, ठीक है, क्योंकि वो डिक्शनरी की है और वैल्यूज इसमें स्टोर होगी आपकी S3 की। तो आप देखिए जो यहाँ पर वैल्यू स्टोर हुई है वो आपकी S3 की हुई है। So this is also the easy way for creating the data frame, जिसमें कि लिस्ट बनाइए, कॉलम वाइज आप लिस्ट बनाइए क्या कंटेंट्स आपको रखने हैं और डिक्शनरी क्रिएट करिए जिसमें कि कॉलम हेडिंग्स रहेगी और उसमें क्या वैल्यूज आपको शो करने हैं। नेक्स्ट, one thing you have to remember, this is the important point or you can say the important difference between the series and the data frame. जब हम डिक्शनरी यूज करते हैं सीरीज के लिए, ठीक है, व्हेन वी क्रिएट अ डिक्शनरी एंड वी क्रिएट अ सीरीज विद द हेल्प ऑफ डिक्शनरी, देन दिस सीरीज डिक्शनरी कीज, ठीक है, नेम, आइटम परचेस्ड एंड कॉस्ट, दीज आर द keys of this dictionary while the creation of series. तो keys of the dictionary become the labels, ठीक है, this becomes the index labels, ठीक है, these are the index, clear, as you can see ये हमारे index बन जाते हैं and the values becomes the actual data of the series। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं ये आपका पूरा का पूरा आपकी वैल्यूज बन जाएगी। एक डिक्शनरी हमने बनाई, एक डिक्शनरी से हमारी एक सीरीज क्रिएट हो रही है, ठीक है। डिक्शनरी के अंदर की जो भी वैल्यूज है, आशीष, ब्रेड और 22.50, ये हमारी सीरीज की वैल्यूज बन गई है। और सीरीज के लिए जो हमने डिक्शनरी क्रिएट की थी, तो इस डिक्शनरी की कीज ये आपके इंडेक्स बन जाएंगे। यहाँ तक क्लियर है सभी को? चलिए अब हम डाटा फ्रेम बनाते हैं विद द हेल्प ऑफ डिक्शनरी। जैसे ही हम डाटा फ्रेम बनाते हैं तो देखिए डाटा फ्रेम में भी हमारे
कॉलम के हेडिंग्स रहेगी नेम, आइटम परचेस्ड एंड कॉस्ट, ये 3 मेरे कॉलम्स हैं। ठीक है, तो अभी जैसे हमने डिस्कस किया था कि डाटा फ्रेम के अंदर कीज ऑफ द डिक्शनरी, ठीक है, कीज ऑफ द डिक्शनरी बिकम्स द कॉलम हेडिंग्स, कीज ऑफ द डिक्शनरी बिकम्स द कॉलम हेडिंग्स। एज यू कैन सी हियर, ये है आउटपुट आपका। इस आउटपुट में आप देखिए नेम, ठीक है, नेम, this becomes the column heading, item purchased, again it is the column heading, then you have the cost. So keys of the dictionary becomes the column headings for the data frame, ठीक है। now the values, अब values इसमें हमने क्या क्या स्टोर की है, a, नेम के नीचे कौन सी चीजें स्टोर होगी या कौन सी वैल्यू स्टोर होगी, ऑल द वैल्यूज ऑफ a। अब A के अंदर हमने क्या वैल्यू स्टोर की है, A के अंदर लिस्ट है एंड दिस लिस्ट इज फॉर द लिस्ट ऑफ नेम्स ऑफ द स्टूडेंट्स। तो देखिए यहाँ पर आप A की वैल्यूज आपकी यहाँ पर स्टोर हो गई है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, नाउ B की वैल्यूज आपकी स्टोर हो रही है अंडर द कॉलम आइटम परचेस्ड। आइटम परचेस्ड कॉलम के नीचे कौन सी वैल्यूज आपकी स्टोर हो रही है, B की वैल्यूज। बी की वैल्यूज में आपकी कौन कौन सी वैल्यूज आ रही है, ब्रेड एंड दी वेजिटेबल्स, ठीक है। नेक्स्ट है वैल्यू, कॉलम है आपका कॉस्ट, और कॉलम कॉस्ट के लिए वैल्यूज कहाँ से जा रही है, सी से। तो सी की वैल्यूज आप देखिए यहाँ पर कॉस्ट कॉलम के नीचे आ गई है। सो दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन द सीरीज एंड द डाटा फ्रेम। सीरीज में याद रखना है कि जब सीरीज बना रहे हैं हम विद द हेल्प ऑफ डिक्शनरी, then the keys of the dictionaries become the index. When you create a data frame with the help of dictionary, then the keys of the dictionaries become the column labels of the data frame. This is the important thing that you have to remember. Don't confuse in it. Next है आपका क्रिएटिंग द डाटा फ्रेम फ्रॉम मल्टीपल सीरीज। अब आपके पास सीरीज है, लिस्ट ऑफ सीरीज है, और इन सीरीज से आप, मल्टीपल सीरीज से आप एक डाटा फ्रेम क्रिएट करेंगे। सेम वैसे ही है जैसे अभी हमने किया था। सो मैंने एक सीरीज बनाई है pd.series and with the help of dictionary I have created a series. Now again फिर मैंने एक सीरीज बनाई है, name is Ankita, item purchased is vegetables, cost is 90. थर्ड सीरीज हमने बनाई है, नेम इज विनोद, आइटम परचेस्ड इज मिल्क एंड कॉस्ट इज 75, ठीक है, हमने ये सीरीज बनाया है। नाउ S1, S2, S3 आर माई 3 सीरीज एंड इफ आई प्रिंट S1 की वैल्यू यदि हम प्रिंट करते हैं तो देखिए हमारा आउटपुट कुछ इस तरह से आएगा, नेम, आइटम परचेस्ड एंड कॉस्ट, दिस विल बिकम द इंडेक्स एंड दिस विल बी द वैल्यूज, ठीक है। दिस विल बी फॉर S1। ऐसे ही S2 की सीरीज बनेगी और S3 की सीरीज बनेगी। बट यहाँ हमें देखना है डाटा फ्रेम के लिए सिंटैक्स। तो डाटा फ्रेम हम क्रिएट कर रहे हैं pd.data_frame एंड यू हैव टू राइट डाउन द लिस्ट ऑफ सीरीज। स्क्वायर ब्रैकेट में आपको लिखना है S1, S2, S3, ठीक है। और इंडेक्स यदि आपको स्पेसिफाई करना है, इंडेक्स लेबलिंग आपको देनी है तो आप दे सकते हैं, रो लेबल्स आप दे सकते हैं। यदि आप नहीं देते हैं तो बाय डिफॉल्ट इट विल बी 0, 1, 2, ठीक है। आप डाटा इक्वल्स टू ये चीज़ आप नहीं भी लिखते हैं तो भी चलेगा, आप डायरेक्टली लिख सकते हैं, आप डायरेक्टली भी लिख सकते हैं स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर S1, S2, S3, ठीक है। दिस इज ऑल्सो वैलिड। सो देखिए आप डायरेक्टली कैसे लिख सकते हैं, pd.data_frame पैरेंथेसिस स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर S1, S2, S3, इंडेक्स की वैल्यूज आपको देनी है तो आप लिख सकते हैं। इंडेक्स भी आपको स्क्वायर ब्रैकेट्स में एनक्लोज करना है एंड यू क्लोज द पैरेंथेसिस। नाउ इफ आई राइट द स्टेटमेंट प्रिंट df, so the data frame will be printed. अब डाटा फ्रेम की देखिए वैल्यूज आपकी क्या प्रिंट होगी। डाटा फ्रेम जब आप क्रिएट कर रहे हैं तो डाटा फ्रेम के लिए जो वैल्यूज आपकी जनरेट होगी वो वैल्यूज आपकी कुछ इस तरह से रहेगी। नाउ
अभी जस्ट हमने देखा था कि whenever we create the data frame, ठीक है, whenever we create the data frame, the keys of the dictionary becomes the column heading. So पहला कॉलम होगा आपका नेम का, पहला कॉलम है आपका नेम का, सेकंड कॉलम है आपका आइटम परचेज्ड एंड थर्ड कॉलम है आपका कॉस्ट का, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है आपको, द सीरीज इंडाइसेस आर प्रमोटेड टू कॉलम हेडिंग्स, दिस इज द इम्पोर्टेंट पॉइंट दैट यू हैव टू रिमेंबर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। Now this is the another example in which we have created the series with the help of list. अब ये जो लिस्ट हमने बनाई है दिस इज कॉलम वाइज। पहले कॉलम के अंदर मेरी ये वैल्यूज हैं, तो इसके लिए मैंने ये एक S1 नाम की सीरीज बना दी जिसके अंदर हमने नेम स्टोर किए हैं, ठीक है। सेकंड S2 मैंने बनाया है, S2 इज ऑल्सो द सीरीज जिसके अंदर हमने आइटम क्या क्या परचेज किए हैं वो स्टोर किया है। एंड S3 मैंने एक सीरीज बनाई है जिसके अंदर कॉस्ट ऑफ दिस आइटम स्टोर किया है। एज यू कैन सी मैंने यहाँ पर इंडेक्स वैल्यूज दी है, ठीक है। आप यदि इंडेक्स वैल्यूज ना देना चाहे तो बाय डिफॉल्ट इट विल बी 0 1 2, ठीक है। Now next I had written the statement for the creation of the data frame. Now data frame is created by using the dictionary. जब डाटा फ्रेम को आपने डिक्शनरी में क्रिएट किया है तो आपको ध्यान रखना है, ठीक है, द कीज ऑफ द डिक्शनरी, द कीज ऑफ द डिक्शनरी विल बिकम द कॉलम हेडिंग्स इन द डाटा फ्रेम। सो दिस इज माय डाटा फ्रेम। सो इस डाटा फ्रेम में देखिए, this is the first key of the dictionary, this is the second key of the dictionary and this is my third key of the dictionary. So ये मेरी कॉलम हेडिंग्स बन गई और इसमें वैल्यूज देखिए क्या क्या मेरी स्टोर हो रही है। नेम के नीचे क्या क्या वैल्यूज आएगी, ऑल द वैल्यूज ऑफ S1, S1 की जो भी वैल्यूज हैं, S1 की वैल्यू आशीष, देखिए आशीष, निकिता एंड विनोद, ये तीनों वैल्यूज आपकी देखिए इस कॉलम के नीचे आ रही है, नेम के नीचे S1 की वैल्यूज आपकी स्टोर हो रही है। ऐसे ही आप देखिए आइटम परचेस मेरी कॉलम हेडिंग बन जाएगी और इसके नीचे सारी वैल्यूज जाएगी आपकी S2 की वैल्यूज जाएगी, ठीक है। ऐसे ही नेक्स्ट कॉलम आपका कॉस्ट बन गया है और कॉस्ट के लिए वैल्यूज क्या क्या जाएगी, कॉस्ट कॉलम के नीचे वैल्यूज आपकी जो भी स्टोर होगी ऑल द वैल्यूज ऑफ S3। तो यहाँ पर देखिए दिस इज अ वेरी इजी मेथड ऑफ द क्रिएशन ऑफ डाटा फ्रेम, ठीक है। कॉलम वाइज आप लिस्ट बना लीजिए, उससे सीरीज क्रिएट कर लीजिए और फिर उस डिक्शनरी के हेल्प से आप डाटा फ्रेम बना लीजिए। सो दिस इज वेरी मच इजी। Important point to remember here is dict keys will become columns in the data frame. Now let's take another example, another method of creating the data frame. यहाँ हमने एक 2D डिक्शनरी ली है और इस 2D डिक्शनरी के हेल्प से हमने एक डाटा फ्रेम क्रिएट किया है। तो देखिए इट इज़ वेरी मच क्लियर। यहाँ पर हमने डिक्शनरी क्रिएट की है जिसमें पहली की है आपकी रोल नंबर, नेक्स्ट यू हैव नेम एंड नेक्स्ट यू हैव द की मार्क्स, ठीक है। नाउ द कीज ऑफ द डिक्शनरी विल बिकम द कॉलम हेडिंग्स इन द डाटा फ्रेम। तो देखिए ये आपके डाटा फ्रेम की हेडिंग्स बन गई है, ठीक है। एंड रोल नंबर के नीचे कौन सी वैल्यूज आएगी, ऑल द वैल्यूज विच आर इंक्लूडेड एज अ वैल्यूज इन द रोल नंबर, ठीक है। नेम के नीचे कौन सी वैल्यूज आएगी, ऑल द वैल्यूज विच आर स्टोर्ड या ऑल द वैल्यूज ऑफ दिस लिस्ट विच आर स्टोर्ड फॉर द नेम की, ठीक है। मार्क्स के नीचे कौन सी वैल्यूज आएगी, मार्क्स की के आगे जो भी वैल्यूज लिखी हुई है वो सारी वैल्यूज मार्क्स के लिए आएगी। सो दिस इज द सिंपल एग्जाम्पल। नाउ दिस इज द इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट, वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट, नेस्टेड डिक्शनरी। अब नेस्टेड डिक्शनरी का मतलब क्या हो गया, when one dictionary is enclosed inside another dictionary then it is called as nested dictionary. Now let's try to understand it by using this example. A is my dictionary, B एक डिक्शनरी है, C एक डिक्शनरी है, so I have total 3 dictionaries.
अब मैंने स्टेटमेंट लिखा डाटा फ्रेम क्रिएट करने के लिए df इक्वल्स टू pd डॉट डाटा फ्रेम and again I have created a dictionary. So with the help of dictionary I am creating a data frame. Now here you can see the first key is alpha, second key is beta and third key is gamma. So अभी तक जितना हमने पढ़ा है उसके अकॉर्डिंग whenever we create the data frame using dictionary then the dictionary keys will become the column headings. So देखिए मेरी column headings जो बनेगी data frame के अंदर, so पहली column heading मेरी क्या बनेगी अल्फा, सेकेंड कॉलम हेडिंग जो मेरी बनेगी दैट विल बी बीटा एंड थर्ड कॉलम हेडिंग जो मेरी बनेगी दैट विल बी गैमा। ठीक है, यहाँ तक तो सभी को क्लियर है। इसके बाद अल्फा के नीचे, ठीक है, अल्फा के नीचे वैल्यूज क्या रहेगी, ऑल द वैल्यूज ऑफ ए की जो भी वैल्यूज रहेगी वो सारी अल्फा के नीचे आएगी। बीटा के नीचे कौन सी वैल्यूज आएगी, ऑल द वैल्यूज ऑफ बी के अंदर जो भी वैल्यूज रहेगी वो बीटा के अंदर आएगी। और गैमा कॉलम के नीचे कौन सी वैल्यूज आएगी, ऑल द कॉलम्स ऑफ ऑल द वैल्यूज ऑफ सी की सारी वैल्यूज आपकी गैमा के नीचे आएगी। यहाँ तक क्लियर है। नाउ यहाँ देखिए आपके पास दो डिक्शनरीज यूज की गई है, इस एग्जाम्पल में दो डिक्शनरीज यूज की गई है। पहली डिक्शनरी है आपकी ABC एंड अनदर डिक्शनरी है आपकी आउटर डिक्शनरी। ठीक है, जो कि यहाँ से स्टार्ट हो रही है आपकी, ठीक, आपकी डिक्शनरी जो स्टार्ट हो रही है इट इज स्टार्टिंग फ्रॉम दिस ब्रेसेस, जो डाटा फ्रेम बनाने के लिए हमने यूज किया है, इट इज स्टार्टिंग फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट। So this is the main dictionary, that is the outer dictionary, this is called as the outer dictionary, and in this outer dictionary you are enclosing the inner dictionaries. inner dictionaries कौन कौन सी है मेरी, A जो कि मेरी inner dictionary है, B मेरी inner dictionary है and the C is also my inner dictionary. तो आप देख सकते हैं आउटर डिक्शनरी के अंदर हमने ABC तीनों डिक्शनरीज को एनक्लोज किया है, दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड एज इनर डिक्शनरीज। ठीक है, एंड व्हेन वी आर एनक्लोजिंग वन डिक्शनरी इनसाइड द अनदर डिक्शनरी देन इट इज कॉल्ड एज नेस्टेड डिक्शनरी। नाउ नेस्टेड डिक्शनरी का एक एग्जाम्पल देखते हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट इज कॉमन इन ऑल द कोड, इंपोर्ट पांडाज एज PD। तो मैंने लिखा है PT1 के मार्क्स क्रिएट किए हैं मैंने। एक बच्चा है उसने इंग्लिश, फिजिक्स और केमिस्ट्री के एग्जाम दिया है एंड द स्कोर ऑफ द स्टूडेंट इज स्टोर्ड एज अ डिक्शनरी। नेक्स्ट मैंने यूज किया है HY, ठीक है, अगेन इट इज अ डिक्शनरी। नाउ दिस चाइल्ड हैज ऑल्सो अपीयर्ड इन ऑल दिस 3 पेपर्स, मार्क्स भी यहाँ पर रिफ्लेक्ट हो रहे हैं। थर्ड मैंने क्रिएट किया है PT2, ठीक है। सो PT1 half HY and PT2 these are my names of the dictionaries। अब देखिए डाटा फ्रेम क्रिएट करने के लिए मैंने फिर से एक डिक्शनरी बनाई है, ठीक है। इस डिक्शनरी को मैंने स्टार्ट किया है, यहाँ पर देखिए ये एंड हो रहा है। इसकी कीज देखिए, exam1 is the key, exam2 is the key and exam3 is the key। तो जितना अभी तक हमने देखा है क्या समझ में आ रहा है हमें कि exam1, exam2, exam3 this will be the column headings for the data frame। Now the values for the exam1 कॉलम के नीचे कौन सी वैल्यूज आएगी, the values of PT1। अब देखिए values of PT1 क्या है आपकी, the values of PT1 are 55, ठीक है, 67 एंड 70, ठीक है। और लेबल्स आपके क्या क्या रहेंगे, लेबल्स विल बी इंग्लिश, दिस विल बी फिजिक्स एंड नेक्स्ट विल बी केमिस्ट्री। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। तो देखिए आपके आउटपुट में कैसे आएगा, exam1 आपका कॉलम हेडर बन जाएगा, इसके नीचे वैल्यूज कहाँ से आएगी, PT1 की सारी वैल्यूज आ जाएगी। सो PT1 की वैल्यूज है हमारी 55, 67, 70। तो देखिए ऑल दिस वैल्यूज आर द वैल्यूज ऑफ
PT1। सो PT1 की सारी वैल्यूज इसके नीचे आ गई है एंड लेबल्स क्या रहेंगे इसके, जो कि आपकी PT1 की डिक्शनरी की कीज है। ठीक है, इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री आपके लेबल्स हो गए। एग्जाम 1 का फर्स्ट कॉलम बना, उसके अंदर PT1 की वैल्यूज आ गई। नेक्स्ट देखते हैं एग्जाम 2 आपका नेक्स्ट कॉलम हेडिंग बन रहा है डाटा फ्रेम में, और इसके लिए वैल्यूज कहाँ से आ रही है, द वैल्यूज आर फ्रॉम HY। ठीक है, सो वैल्यूज HY की ले रहा है, इट इज 60, 90 एंड 89। नेक्स्ट कॉलम विल बी एग्जाम 3 एंड एग्जाम 3 के लिए देखिए वैल्यूज कहाँ से आ जाएगी, PT2 की वैल्यूज सारी एग्जाम 3 के कॉलम के लिए आपकी आ जाएगी। देख सकते हैं आप, इट इज 75, 36 एंड 45 एज यू कैन सी इन दिस डिक्शनरी PT2। ठीक है, नाउ the point here to remember is dict keys will become the columns in the data frame. This is the important thing that you have to remember. Now, आप इस प्रीवियस एग्जाम्पल में यहाँ देखिए आपकी जितने भी इनर डिक्शनरीज थी PT1, HY एंड PT2, इसमें आपकी जो कीज थी यू हैव ऑल द कॉमन कीज। ठीक है, PT1 में भी इंग्लिश है, हाफ ईयरली में भी इंग्लिश है, PT2 में भी इंग्लिश है, फिजिक्स भी तीनों में है और केमिस्ट्री भी तीनों में है। सपोज किसी केस में ऐसा होता है कि बच्चा किसी और एग्जाम के लिए अपीयर होता है। ठीक है, जैसे ये एक एग्जाम्पल देखिए, ये एक एग्जाम्पल है, PT1 में बच्चा तीनों एग्जाम्स में अपीयर हो रहा है, इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री। हाफ ईयरली में देखिए HY में इंग्लिश, फिजिक्स एंड बायो। ये केमिस्ट्री की जगह बच्चा बायो में अपीयर हो रहा है, तो की इज चेंज्ड हियर। ठीक है, की आपकी चेंज हो गई बायो। नाउ PT2 में देखिए इंग्लिश, नेक्स्ट की इज मैथ्स एंड केमिस्ट्री। आप यहाँ देख सकते हैं दिस टू कीज आर डिफरेंट, ये दो कीज आपकी डिफरेंट है, वन इज बायो एंड अनदर की दैट इज डिफरेंट इज मैथ्स। ये दो कीज आपकी डिफरेंट है। ठीक है, अब डाटा फ्रेम हम क्रिएट कर रहे हैं बाय यूजिंग द डिक्शनरी। सो आप देखिए यहाँ पर मेरी कॉलम हेडिंग्स क्या बन जाएगी, एग्जाम 1 विल बी माई कॉलम हेडिंग, एग्जाम 2 विल बी माई कॉलम हेडिंग एंड एग्जाम 3 विल बी माई कॉलम हेडिंग। और एग्जाम 1 के लिए, ठीक है, एग्जाम 1 विल बी माई कॉलम हेडिंग, उसके लिए वैल्यूज कहाँ से आएगी, PT1 से। तो PT1 की वैल्यूज है आपकी 55, 67 एंड 70। तो देखिए एग्जाम 1 आपका कॉलम हेडिंग बन जाएगा। ठीक है, और वैल्यूज आपकी ये PT1 से सारी वैल्यूज आ जाएगी एंड लेबल्स आपके क्या रहेंगे, इंडेक्स क्या रहेगा आपका, रो इंडेक्स इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री एज पर PT1। ठीक है, यहाँ तक PT1 का आउटपुट क्लियर है। नेक्स्ट आते हैं हम हाफ ईयरली के लिए। ठीक है, अब हाफ ईयरली के लिए देखिए कॉलम हेडिंग रहेगी आपकी एग्जाम 2। ठीक है, एग्जाम 2 और वैल्यूज उसके लिए कहाँ से लेंगे, HY से। ठीक है, हाफ ईयरली से। आप यहाँ पर देखिए इंग्लिश, फिजिक्स के लिए तो मार्क्स अवेलेबल हो जाएंगे, फॉर दिस रो मार्क्स विल बी अवेलेबल। फिजिक्स के लिए आपके मार्क्स अवेलेबल हो जाएंगे, इंग्लिश के लिए है आपके पास, फिजिक्स के लिए है, केमिस्ट्री के लिए मार्क्स अवेलेबल नहीं है। ठीक है, केमिस्ट्री के लिए मार्क्स अवेलेबल नहीं है, क्लियर। बट इंस्टेड ऑफ केमिस्ट्री वी हैव बायो, सो यहाँ हमें एक बायो का लेबल बनाना पड़ेगा। ठीक है, एक इंडेक्स बनाना होगा। ठीक, तो देखिए इस केस में कैसा होगा, एग्जाम 2 में केमिस्ट्री का एग्जाम नहीं है। ठीक है, बच्चे ने केमिस्ट्री का एग्जाम नहीं दिया, यहाँ कोई वैल्यू नहीं है, तो दिस विल बी नन। लेकिन बायो का एग्जाम के लिए अपीयर हुआ तो बायो का एक इंडेक्स बनेगा, इंडेक्स बन गया। अब बायो के लिए देखिए PT1 में कोई वैल्यू नहीं है। ठीक है, सो इट विल बी नन। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम 2 के लिए देखिए वैल्यूज कहाँ से आ रही है, हाफ ईयरली से आ रही है, हाफ ईयरली में बायो है। ठीक है, तो बायो हाफ ईयरली में है, सो फॉर हियर वी विल हैव द वैल्यूज 89 एज मेंशनड इन HY। जैसे कि यहाँ पर देखिए ये वैल्यू मेंशन है आपकी 89, तो ये वैल्यू आपकी यहाँ पर डिस्प्ले होगी। अब आते हैं एग्जाम 3 कॉलम में। ठीक है, अब एग्जाम 3 कॉलम में देखिए आपकी वैल्यूज कहाँ से लेनी है, हमें वैल्यूज लेनी है PT2 से। अब PT2 से जब हम वैल्यूज ले रहे हैं तो PT2 में वी हैव इंग्लिश, इंग्लिश के लिए वैल्यू है
ठीक है। मैथ्स के लिए वैल्यूज़ अभी हमने कॉलम ही नहीं बनाया, लेबल ही नहीं बनाया हमारा, ठीक है। सो यहाँ पर आपकी वैल्यू अवेलेबल नहीं है फिजिक्स के लिए, इसलिए यहाँ पर नन आ गया है, ठीक। 45 फॉर केमिस्ट्री इट इज़ अवेलेबल, तो ये आ गया आपका 45, ठीक है। नेक्स्ट अभी आपको क्या चाहिए, यहाँ पर PT2 के लिए मैथ्स का भी ऑप्शन चाहिए। बायो आपका इंडेक्स है, क्या बायो के लिए कोई वैल्यू है, नहीं है, तो यहाँ पर आपकी वैल्यू आ जानी चाहिए नन। देखिए यहाँ वैल्यू नन आ जाएगी एंड एक आपका इंडेक्स एक्स्ट्रा बनेगा दैट इज मैथ्स, जो कि आपका PT2 के लिए की जो आपकी मैथ्स है उसके लिए एक आपका इंडेक्स बनेगा, रो इंडेक्स बनेगा। अब मैथ्स की वैल्यू सिर्फ PT2 में अवेलेबल है एंड PT2 आपका यहाँ आता है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर आपकी PT1 के लिए यू डोंट हैव एनी वैल्यू फॉर मैथ्स, हाफ ईयरली के लिए नो वैल्यू फॉर मैथ्स एंड यहाँ पर देखिए PT2 के लिए यू हैव द वैल्यू फॉर मैथ्स, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए आई हैड यूज दिस NaN का मतलब क्या हो गया, नॉट अ नंबर, मिसिंग वैल्यू, सो मिसिंग वैल्यू इज डिनोटेड बाय यूजिंग NaN। क्लियर। अब एक इंपॉर्टेंट चीज ध्यान रखनी है आपको, whenever we are using the nested dictionary then the total number of rows, ठीक है, the total number of rows in the data frame, ठीक है, ये डाटा फ्रेम आपका बन गया है, इस डाटा फ्रेम में टोटल नंबर ऑफ रोज विल बी इक्वल टू द सम ऑफ ऑल यूनिक इंडाइसेस ऑफ द इनर डिक्शनरी, ठीक है। यूनिक कीज यू कैन से, यूनिक कीज, ठीक है, यूनिक कीज ऑफ द इनर डिक्शनरी, ठीक है। जैसे कि इंग्लिश कॉमन है तो इसमें से यूनिक एक ही हो जाएगा, डिस्टिंक्ट वैल्यू विल बी इंग्लिश। फिजिक्स 2 है तो उसमें से एक ही फिजिक्स हो गया। सो काउंट करेंगे हम, जितनी वैल्यूज आपकी आएगी, यूनिक वैल्यूज आएगी जितनी कीज की, उतनी वैल्यूज आपकी रोज की बनेगी, ठीक है। सो देखिए इसी से हम एक चीज कंक्लूड करते हैं, in case if there are non-matching keys in the inner dictionaries then the total number of rows will be the sum of all unique inner indices, ठीक है। क्या मतलब हुआ इस चीज का, sum of all unique inner indices, ठीक है। यूनिक इनर इंडाइसिस का मतलब क्या हुआ हमारा, जैसे कि इस एग्जाम्पल में यूनिक इनर इंडाइसिस, ठीक है, ये वैल्यूज हो गई आपकी। सो यू हैव टू टेक द यूनिक वैल्यूज, ठीक है, यूनिक कीज फ्रॉम द इनर डिक्शनरीज। कितनी यूनिक आपकी कीज अवेलेबल है वो आपको देखना है, जितनी यूनिक आपकी कीज रहेगी उतनी ही आपकी रोज बनेगी। फिर आज जितना भी हमने पढ़ा है जस्ट उसको रिकॉल कर लेते हैं, ठीक है। तो देखिए डाटा फ्रेम इज साइज म्यूटेबल, वाई, क्यों कहते हैं हम डाटा फ्रेम साइज म्यूटेबल है, बिकॉज we can add the row, we can add the columns or we can delete the columns in the data frame. Now how many indices does the data frame have, data frame में कितने indices होते हैं। Now since the data frame is in the tabular format, so यहाँ पर दो indices होते हैं, row index and the column index. Now dictionary keys will become dash in the data frame, so dictionary keys will become column in the data frame, ठीक है। Now creating data frame using list, series, dictionary and nested dictionary, so you have to revise it, you have to practice the code for writing the data frame. डाटा फ्रेम के लिए सीरीज के थ्रू कैसे बनाना है, डिक्शनरी के थ्रू कैसे बनाना है, या नेस्टेड डिक्शनरी के थ्रू आपको कोड कैसे लिखना है डाटा फ्रेम के लिए, उसकी आप प्रैक्टिस करेंगे। होप एवरीथिंग इज क्लियर टू यू। यदि कोई भी दिक्कत है, कोई चीज़ नहीं समझ में आ रही है तो आप पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।